Dear children, a very good morning to all of you. Bachcho, this is 21st century. And when we talk about 21st century, we always say about 21st century that this is the era and this is the age of competition and very fierce competition. मतलब ये प्रतियोगिता का दौर है, मुकाबले का दौर है और कड़े मुकाबले का दौर है. किस प्रकार का दौर है? कड़े मुकाबले का दौर है. And if we are to succeed in this competition, it's very important that we should be thoroughly prepared for this kind of competition. So is it important for us to prepare for this competition or not? इस competition के लिए खुद को तैयार करना क्या ये important है या नहीं है? हम इस competition में क्या हम जीतना चाहेंगे या हारना चाहेंगे? What is our priority? We would like to win in this competitive world. Who would like to win in this competitive world? कौन जीतना चाहेगा? Everybody. There are certain students who are perhaps not interested in winning. They are here to lose. हम यहाँ पर हारने के लिए आ रहे हैं या जीतने के लिए आ रहे हैं? जीतने की तैयारी करने के लिए. We are here for doing strong preparation for winning and not for losing. So dear children, this is what school also wants, that all our students, they should win in their life, they should not lose in their life. उनको जिंदगी में क्या करना है? जीतना है, ना कि ये 9th के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? Do they want to win or they want to lose? They also want to win. Very good. I appreciate that. लेकिन for that, for winning, you need proper environment, you need proper training, you need proper grooming. And you need proper preparation. And that preparation, that grooming, that training is being provided to all of you here at the school. ये सब कुछ आपको स्कूल में मिल रहा है या हम चाहते हैं कि आपको मिले. But there are certain students who are making our job very difficult for us. And those who are spoiling the environment. जो भी ट्रेनिंग है, जो भी ग्रूमिंग है, जो भी प्रिपरेशन है, उसके लिए एक वातावरण का होना जरूरी है. क्या जरूरी है? वातावरण का होना जरूरी है. उस वातावरण में अगर अनुशासन है, ट्रेनिंग विल बी गुड. बट इफ अगर उस वातावरण में अनुशासन नहीं है, ट्रेनिंग विल नॉट बी गुड. और अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या जीतेंगे या हारेंगे? हारेंगे. हारेंगे तो जिंदगी में सम्मान मिलेगा या जिंदगी में पछतावा होगा? तो पछतावे की जिंदगी जीनी है? बताएं, चॉइस है पछतावे की जिंदगी जीने की? Do we really want to lead the life of regrets and repentance? क्या ये जिंदगी जीनी है? No, we would like to lead the life of pride. हमें गर्व की जिंदगी जीनी है. कौन सी जिंदगी? तो इसलिए हल्का सा भी जो इनडिसिप्लिन है, हल्की सी भी जो अनुशासनहीनता है, वो वातावरण को खराब कर रही है. एक चीज मैं जो सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे सभी बच्चे दोबारा से शुरू करें, जो हम स्कूल में किया करते थे, जो अब नहीं हो रहा है, that is recess prayer. Every day in every class, right from nursery to 12th, without fail, recess prayer should be there. No child will come out of the class until unless recess prayer is done in the class. जब तक recess prayer क्लास में नहीं होती, कोई बच्चा क्लास से बाहर नहीं आएगा. And recess prayer will always be conducted in the presence of the class teacher. अगर क्लास टीचर छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह पे कोई और टीचर वहां पर पहुंचेंगे. This is the responsibility of our school's coordinators. वो वहां पर कोई और सब्स्टिट्यूट टीचर भेजेंगे ताकि उनकी प्रेजेंस में प्रेयर हो. And prayer should be done in a very disciplined manner. बहुत अनुशासन के साथ प्रेयर होनी चाहिए. Everybody should fold the hand. Tiffin boxes should be there on the table. टिफिन बॉक्सेस सामने होने चाहिए. हम खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर हमें रोटी दे रहा है, उसके लिए ईश्वर का आभार चुकाना है. टिफिन बॉक्स टेबल पे होने चाहिए. हैंड वॉशिंग से पहले प्रेयर होएगी, हैंड वॉशिंग के बाद नहीं. हैंड वॉशिंग से पहले एवरी डे प्रेयर शुड बी देयर राइट फ्रॉम नर्सरी टू 12th. इसमें अगर कोई बच्चा अनुशासनहीनता दिखाता है, यंग मेंटोर के साथ उस बच्चे को मेरे ऑफिस के बाहर भेज दिया जाए, वहां बिठा दिया जाए. Second point is, no child is permitted to come out of the class without teacher's permission. No child is permitted to
come out of the class without teacher's permission. So, एक पीरियड खत्म होता है and we come out of the class. जितने बच्चे क्लास से बाहर आते हैं, उसके बाद टीचर क्लास में पहुंच जाते हैं. जो टीचर क्लास में पहुंच जाते हैं, this is for teachers also to note. जब आप क्लास में पहुंच गए और आपके क्लास में पहुंचने के बाद बच्चा कहता है, may I come in, madam? That child will not be permitted to enter the class. उस बच्चे को क्लास के अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. अगर वो कहता है पिछले टीचर से परमिशन लेकर गया था, तो कोई भी टीचर बजर के बाद किसी बच्चे को क्लास से बाहर आने की परमिशन नहीं देंगे. बजर के बाद कोई टीचर बच्चे को क्लास से बाहर जाने की परमिशन नहीं देंगे. बजर के बाद जो परमिशन होएगा बजर से पहले होएगा. इसका मतलब बच्चे को बजर के फाइनल बेल होने से पहले पहले अपनी क्लास में वापस पहुंचना है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इस प्रकार की गलती करते हैं, पनिशमेंट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट. किसी भी पीरियड में अगर कोई बच्चा इस प्रकार की गलती करता है, दैट चाइल्ड शुड बी सेंट टू मी. वो बच्चा क्लास में नहीं रहेगा, उसको क्लास के बाहर भी खड़ा नहीं करना है. यंग मेंटोर के साथ ऐसे सभी बच्चों को मेरे ऑफिस के बाहर भेजना है. नंबर में भी 50, नंबर में भी 100, 100 की गिनती भी होएगी तो वो सारे मेरे ऑफिस के बाहर रहेंगे. नो वार्निंग. इसके लिए बच्चों को कोई वार्निंग नहीं देनी. हमने असेंबली में अनाउंस कर दिया है. जब एक्टिविटी पीरियड होता है तो जो बच्चे क्लास से बाहर जाते हैं उनको ले जाने के लिए देयर इज ऑलवेज अ टीचर. सिमिलरली व्हेन एक्टिविटी पीरियड इज ओवर, उनको वापस एक्टिविटी पॉइंट से क्लास में लाने के लिए देयर इज ऑलवेज अ टीचर. लेकिन उन टीचर्स के साथ ना आकर कोई बच्चा अकेला वाटर पॉइंट पे जाता है, वॉशरूम में जाता है, वो बच्चा जब क्लास में नेक्स्ट टीचर के पास पहुंचता है और नेक्स्ट टीचर ये नोटिस करते हैं ये अकेला आ रहा है, उस बच्चे को भी क्लास में आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए. ये और दूसरी एक बात और, किसी भी प्रकार का क्लासरूम इनडिसिप्लिन, अगर कोई सब्जेक्ट टीचर ये चीज नोटिस करते हैं तो एक वार्निंग ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है. एक वार्निंग के बाद भी अगर बच्चा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाता है, दैट चाइल्ड शुड आल्सो बी सेंट टू द प्रिंसिपल. सो दीज आर द नॉर्म्स व्हिच आर टू बी फॉलोड इन द स्कूल. एंड आई एम श्योर कि जिंदगी में जीतने के लिए 21वीं सदी में अपना मुकाम बनाने के लिए, हर कंपटीशन में विक्ट्री हासिल करने के लिए हमारे स्कूल के सभी छोटे और बड़े बच्चे स्कूल का जो वातावरण है उसको अच्छा बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे. और कोई इस बात की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देगा कि उसको कोई किसी प्रकार की पनिशमेंट देने की जरूरत हो. तो कैन आई हैव दिस काइंड ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स? यस और नो? Wonderful. God bless you all. Take good care of yourself.